نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمین ثم آمین۔ اپنے تیسرے جز کا تلک الرسل کا آغاز کرتے ہیں اور ترجمہ دیکھتے ہیں جو بھی آیات تلاوت کی گئی۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور ہر ایک اپنے مقام پہ اپنے درجات پہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ان کو درجہ دیا گیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم اب کسی کا درجہ یا گھٹا یا بڑھا نہیں، کوئی بھی انسان گھٹا بڑھا نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے، اور ہر اس میں رسول اور نبی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ رسول ان کو کہا جاتا ہے جن کے جو نبی تو ہیں ہی لیکن ان کے ساتھ ان کے اوپر کتاب بھی نازل ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم پہ بھی صحیفہ نازل ہوا تھا، ظہر، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام پہ زبور، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو تورات نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرآن۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ کے اوپر جو فضیلت عطا کی ہے، اس کے علاوہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا ان کے درجات ہیں، اور ترجمہ میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ اور بعض کے درجے بلند کیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑائی نہ کرتی، یہ اللہ تعالیٰ زبردستی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس دنیا میں تو سب کو عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ آزاد ہیں، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے بعض کافر۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہدایت بھی مانگنے پہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے سلسلہ کہ اس کو مانگنا پڑتا ہے، اور ویسے اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہو، ان کا اپنا جس طرف ہو کہ وہ کسی کو اگر ہدایت بن مانگے بھی ادا کرتے تو یہ ان کی دین ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ ہی چیز ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے وہ عمل جو ہے وہ اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، جس چیز کو ہونے دینا چاہتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت سے اور نہ دوستی سے نہ شفاعت جو ہے وہ اس دن کے اندر یہ نہ تو کوئی چیز خریدی جا سکے گی، نہیں کہ نہ کوئی دوستی کام آئی ہو نہ شفاعت ہے، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے، جو ان کے پیچھے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، وسع کرسی السماوات والارض۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے طاقت، اور یہ آیت الکرسی کا ہم ترجمہ اس میں پڑھیں کیونکہ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور ان کی حقانیت، ان کی صفات اور ان کا جو دنیا میں دبدبہ ہے اصل، وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ یہ توحید اور ان کا جو کہنا چاہیے کہ زمین اور آسمان میں ان کی جو طاقت ہے، ان آیات کی اہمیت ہم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ شیاطین اور جو باقی مخلوقات کو جس طرح سے معلوم ہے کہ جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے ذکر کیے جانے سے جو ہے کہ گھبرا کر کے وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی اہمیت والی آیات ہے، اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ تو اس طرح کی حفاظت تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ پلک جھپکنے سے بھی مطلب کسی چیز کو اس کی حفاظت سے نہ چھوڑا جائے۔ تو سب سے زیادہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے زیادہ حفیظ اور حفاظت کرنے والے اور تھام کے رکھنے والے تمام کائنات، اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے، اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا، کیونکہ دیکھیں تمام آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو عرش الہی پہلے آسمان کے اوپر ہے، اور ہم اس وقت 7ویں آسمان کی مطلب ایک لیول کے اوپر ہے۔ تو اس سے دیکھیں کہ وہ تمام آسمانوں کے اندر کیا کیا کام نہیں ہو رہے ہوں گے، مخلوقات ہیں ان کا خیال کرنا، ان سسٹمز کو چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ نہ وہ اسے اکتاتے بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جس میں انسان تھوڑا سا ایک کام کرتے ہیں اور وہ مسلسل کسی کام کو کرتے رہنے کے لیے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی دل جمی نہیں ہے، تو وہ تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔
तो बात ये है कि इसके अंदर जो अल्लाह ताला की शान बयान की गई है और उनकी कुर्सी की वसअत, तो कुर्सी चूँकि जैसे मिसाल के तौर पे भी बयान किया गया है, और चूँकि हमें अल्लाह ताला की जिस्मानी ख़ुसूसियात और इसी तरीके से कि वो किस तरह के उनके पास चीज़ें भी होंगी उसके बारे में चूँकि हमें जितना बताया गया है बस उस हद तक ही रहना है। लेकिन हम उनकी बताई हुई बातों को हमारे पास जो चीज़ें हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो कुर्सी की बात की जा रही है एक मिसाल के तौर के ऊपर बात है कि उनकी जो ताकत है, उनका जो कहना चाहिए कि हर चीज़ उनके काबू में है। जो कुर्सी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे किसी की हुकूमत होती है, तो उनकी हुकूमत की जो वुसअत है वो इतनी बड़ी है। दुनिया का कोई भी बादशाह हो या कहें कि, लेकिन वो एक इलाके में ही हुक्मरान होता है। अल्लाह ताला की तो जो हुक्मरानी है, उनका जो तसल्लुत है और वो जिस तरह काम ले सकते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उनकी मलकियत है, और उस तरह तो कोई इंसानों के अंदर या मखलूक़ात के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसके पास इस कदर ताकत हो। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन हो चुकी है। यानी अब तो ये फुरक़ान हमीद आ चुका है, अल्लाह ताला की तमाम हदायत आ चुकी हैं, और नबी आखिरुज़्ज़मा जो हैं वो भी जो है अपनी जो उनको नबूवत का काम दिया गया था और बात पहुँचाने का काम दिया गया था, वो काम करके जा चुके। तो ये बातें अब नहीं हो स कोई कह सकता कि सीधा रास्ता कौन-सा था और नहीं था। अब तो ये सीधा रास्ता आ चुका है और हदायत आ चुकी है, तो लिहाज़ा बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, ये किताब उसको वाज़िह कर रही है। आयतुल कुर्सी की जो के साथ ये आयात हैं, इनको भी, इनके बारे में भी जाता है कि ये इनको पढ़ा जाए रुक़या के लिए भी, तो जो कि भी जिसका हम तर्जुमा साथ-साथ पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होती हैं। ये आयतुल कुर्सी की जो फ़ज़ीलत है, वो अहादीस सित्ता से भी साबित है कि ये कुरान पाक की अज़ीम एक आयतों में से है। इसके पढ़ने से रात को शैतान से तहफ़्फ़ुज़ रहता है, बल्कि दिन के टाइम में भी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी इसको पढ़ना चाहिए, और इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है। ये इब्न कसीर की जो है वो तफ़सीर के अंदर ये बात बयान है, और ये अल्लाह ताला की सिफ़ात और जलाल की जो शान है, इसके अंदर बहुत जामिया तरीके से जो है ये बयान की गई है। बहरहाल बाकी तर्जुमा यहाँ से देखते हैं। इसलिए जो शख़्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाए, इसने मज़बूत कड़े को थाम लिया। अभी देखिए अल्लाह ताला की ताकत का कंपैरिज़न अगर दुनिया में हमने समझने के लिए किया कि हमें तो ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नज़र नहीं आती, जिस दुनिया में हम मौजूद हैं। तो बात ये है कि जब इतनी मज़बूती वाली और शान वाली शख्सियत है, उनकी जो ताकत उनके पास है, वो किसी और के पास नहीं है, तो ये आयत जो है वो इस चीज़ को समझ एक्सप्लेन कर रही है कि जो कोई अल्लाह के सिवा किसी से मदद माँगने जाता है, तो वहाँ से क्या मदद मिलेगी? जितनी ताकत, जितनी शान, जितना मतलब हर चीज़ उनके इख्तियार में है, ये इख्तियार तो किसी के पास है ही नहीं। तो फिर अल्लाह के सिवा तो जो है वो जो कोई किसी चीज़ का इनकार करता है कि कोई दूसरा कोई माबूद ही नहीं और सिर्फ अल्लाह है और उनसे वो लगाता है, तो फिर बात क्या है, तो उसने तो बहुत एक मजबूत किस्म की कड़े को थाम लिया, एक बहुत मजबूत, उसके पास बहुत मजबूती है। क्योंकि जब किसी मजबूत इंसान के साथ या शख्सियत के साथ इंसान अपनी वाबस्तगी का इजहार करता है और समझता है कि यहाँ से मेरे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, तो इंसान खुद सोचे कि जो इतनी बड़ी मजबूत हस्ती हैं, इतनी ताकत और इख्तियार वाली, तो हम उनके साथ जुड़ेंगे और उनके साथ अपनी निस्बत जो है बनाएंगे, तो हमने कितनी मजबूती वाली जो उनसे है, अब खुद भी इस दुनिया में जो है और आखिरत में, और जो है हमें वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो जो कभी ना टूटेगा। यानी कि इस तरह की वो प्रोटेक्शन है, ऐसा मजबूत कड़ा है कि जिसको कभी भी, जिसके साथ कोई खराबी नहीं हो सकती, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और यानी कि अल्लाह ताला से जो भी इंसान दुआ करता है, और अल्लाह ताला से जो अल्लाह ताला तक जो तमाम मखलूक़ात की जो बातें पहुँच रही हैं, उन तमाम का डेटा अगर हम खुद सोचें, हमारे अपने कंप्यूटर्स में जो है वो हम कितना छोटा सा डेटा जो है प्रोसेस करते हैं, तो अल्लाह ताला तो पूरे एक दिन में ही इतनी सारी मखलूक़ात है, सातों आसमान की, उनकी हिफाजत, उनको उनके सारे मामलात को सँभालना, वो सारा डेटा किस तरह से वो प्रोसेस करते होंगे, उनके पास क्या निज़ाम है, वो हमारी सोच से भी ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ है। तो वो सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं, और इल्म रखते हैं, और उनका इल्म, हमारे इल्म का तो हम तो उसका साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक मुकाबला करें। ईमान लाने वालों का कारसाज़ खुद अल्लाह है, और इन्हें रोशनी, अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल कर ले जाता है, और काफ़िरों के औलिया, उनके जो दोस्त हैं, वो शयातीन होते हैं, क्योंकि सारे अल्लाह के मुकाबले में जो ग्रो होगा, वो जो है मतलब एक तरह से नूर हिदायत कहा गया है। अल्लाह ताला की जो है वो के जो साथ होते हैं लोग, अल्लाह उनको नूर अता फरमाते हैं हिदायत का। तो जो दूसरी जानिब होगा मुखालिफत में, तो वहाँ तो फिर ज़ुल्मत और अंधेरा होगा। तो लिहाज़ा शयातीन जो होते हैं, वो अपने दोस्तों को नूर से निकाल करके अंधेरे में ले जाते हैं, और ये लोग जहन्नमी हैं, जो हमेशा इसमें पड़े रहेंगे। क्या आपने नहीं देखा कि जो सल्तनत पा करके इब्राहीम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था, वो कौन इंसान था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह था, ये उसका ज़िक्र है, जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। वो कहने लगा, मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। और इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक़ की तरफ से लेकर के आता है, आप तो फिर तू इसे मग़रिब की तरफ से ले आ। अब तो वो काफ़िर हक्का-बक्का रह गया। तो अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। या इस शख़्स की मानद के जिसका गुज़र इस बस्ती पर हुआ, जो छत के बल ऊँधी पड़ी हुई थी, ये, और वो कहने लगा कि इसकी मौत के बाद अल्लाह इसको किस तरह से ज़िंदा करेगा। ये एक वाक़या है, और छोटा-सा, जो कि एक बस्ती से जो जिस शख़्स का गुज़र हुआ, तो बहुत सारे जो तफ़ासीर में जो बातें आती हैं कि वो ये कि ज़्यादा मशहूर उसमें से ये कि हज़रत उज़ैर जो उनसे एक मतलब पैगम्बर थे, और उनके बारे में ये है कि उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया था, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में है, वो नमरूद जो बादशाह था, उनके साथ उनका डायलॉग है। तो बहरहाल ये मौत के बारे में उन्होंने जो सवाल किया उस नबी ने, और जिनका ये ज़िक्र कि वो एक शख़्स जो एक बस्ती से गुज़रा, तो अल्लाह ने इसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर इसे उठाया। यानी उनको अल्लाह ताला ने इस तरह से 100 साल के लिए जो है उनको मौत दे दी, और फिर जब उनको दोबारा ज़िंदा दी, तो पूछा कितनी मुद्दत आप पे गुज़री है, तो वो कहने लगे कि 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो ये इंसान की याददाश्त है, और क्योंकि इंसान
जब ज़िंदगी ले ली जाती है या सो जाता है तो वक़्त की तक़सीम का एहसास ही नहीं रहता। ये तो हमारे साथ भी होता है। तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनको वो किस तरह से बताते, क्योंकि जब वो उनको मत समझिए कि एक तरह से लंबे 100 साल के अरसे के लिए सुला दिया गया, एक मौत तारी कर दी गई। तो वो तो नहीं जानते थे कि कितना अरसा गुज़रा है। तो फरमाया कि बल्कि तू 100 साल तक रहा। अब तो अपने खाने और पीने की तरफ देख, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बल्कि अपने गधे को भी देख जो उनकी सवारी थी। तो हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब ज़ाहिर हो चुका, यानी अल्लाह ताला ने उनके सामने जो 2 और मोजज़ात दिखाए, वो ये थे कि उनका खाना जो था, जो उनके सामने था, वो जो है वो ख़राब उस तरह से नहीं होता। अलबत्ता जो उनके सामने उनका गधा या उनकी सवारी थी, वो गल-सड़ चुका था, उसकी हड्डियाँ सी रह गई थीं, ताकि उनको एहसास होता कि इतना वक़्त गुज़र चुका है। और जब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि वो उन हड्डियों की तरफ देखें, तो उनके सामने हड्डियाँ इकट्ठी की गई, उनके ऊपर गोश्त चढ़ाया गया और फिर इस तरह से पूरी खाल चढ़ा के उसको पूरा ज़िंदा कर दिया गया, उस सवारी को उनकी। और जब ये सब चीज़ें उनके सामने ज़ाहिर हुई, तो वो कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी कि पहले वो ईमान बिल गैब था कि अल्लाह ताला मौत और ज़िंदगी पे कादिर है। लेकिन जब आँखों से उन्होंने देख लिया, ईमान बिल यकीन उनको वो उसमें दाखिल हो गए। लेकिन हमें जितनी बातें भी जैसे दीन इब्राहिमी में भी जिस तरह से बताई जा रही हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें जन्नत, दोज़ख, पुलिसरात और फ़रिश्तों का और तमाम किताबों का, जैसे जिस हालत में वो उतरी होंगी, वो हमारे लिए गैब है। कुरान पाक हम के ज़रिए हमें इसकी खबर दी जाती है, लेकिन खबर देने वाले कौन है? ये बात को समझाने और इस ये जो भी हमने किस्सा पढ़ा है, इसको बताने वाले कौन है? अल्लाह ताला खुद। तो अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्ची बात और कौन कर सकता है? तो ये जो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमें इस पे ईमान लेकर के आना है, और हमारे पास कोई नबी या कोई ऐसा ज़रिया मौजूद नहीं है कि जिस तरह से हम ये कहें कि हमें इस तरह से, लेकिन हम अपनी जितनी भी इंसानों की टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों से इस चीज़ को हम जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। और जब इब्राहीम ने कहा कि "ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे आप ही दिखाइए कि आप मुर्दों को किस तरह से ज़िंदा करेंगे?" जनाब बारी तआला ने कहा कि क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया, 4 परिंदे लो और उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक-एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो और तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएँ, तो जान रखो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। तो इसी तरीके से हुआ जैसे अल्लाह ताला ने उनको गाइड किया था। बात ये थी कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई मौत के ऊपर शक कर रहे थे, लेकिन इस वाक़ये को बताने का एक और भी मकसद है कि जिस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान पाक नाज़िल हो रहा था, तो उस वक़्त में भी जो अहले किताब थे, वो उनमें से बहुत सारे उनके फ़िरके जो थे कि मौत के बाद की ज़िंदगी और आखिरत के तसव्वुर से जो है वो हट चुके थे, और अपनी काफ़ी इबादत के अंदर उन्होंने तब्दीलियाँ भी कर ली थी। इसी वजह से वो मतलब ये वाला नज़रिया भी रखते थे कि अगर कोई ज़िंदगी ऐसी हुई आखिरत की, तो उनको बहुत कम दिन जो उनको किसी चीज़ की पकड़ होगी, क्योंकि वो इतने बख्शे-बख्शाए हैं। तो अजीब इस तरह के ख़्यालात उन्होंने अपने पास से बना रखे थे। तो अल्लाह ताला ये जो मौत के बाद की ज़िंदगी है, ये दोनों हज़रात का जो ज़िक्र किया, वो जिनको कि वो मानते थे अहले किताब, तो अल्लाह ताला ने, और ख़ास तौर पे कुफ़ार मक्का भी, जो कि इस चीज़ को, अपने दीन को भूल चुके हुए थे, जो कि वो बनी इस्माइल की नस्ल में से हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो जो थे, वो तो अल्लाह ताला के को मानने वाले थे, और ये तमाम चीज़ों के ऊपर उनका ईमान था। तो ये तमाम बातें, जो तरह-तरह के और ख़्यालात तो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का के दरमियान में पाए जाते थे, मौत के बाद की ज़िंदगी के कि किस तरह से है, होगी या नहीं होगी, उसका जवाब अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे तरीके से दिया कि अल्लाह ताला कादिर हैं कि वो जो है वो इंसान के अज़्ज़ा भी बिखर जाएँ या किसी मखलूक के भी बिखर जाएँ, तो उसको दोबारा से उसी तरीके से बना देने के, जो एक दफ़ा बना सकते हैं, वो बार-बार भी उसको बना सकते हैं। तो इस चीज़ से ये चीज़ वाज़ह होगी, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं, और उनकी मिसाल इस दाने की सी है जिसमें से 7 बालियाँ निकली, हर बाली में 100 दाने हो, अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा-चढ़ा दे, और अल्लाह की शादी और इल्म वानी है। तो बात ये है कि अल्लाह के रास्ते में जब कोई चीज़ दी जाती है, ख़ास तौर पे दुनिया की दौलत हो माल, क्योंकि एक टेस्ट के तौर के ऊपर ही है कि आया कि इंसान इसको कहाँ पे खर्च करता है। इंसान का हर लिहाज से ज़्यादा कोई रिस्क दिया जाना या रिस्क की कमी, दोनों सूरत हाल में टेस्ट है। जो रिस्क की जो उसके पास जिस भी हालत में है, उसको अल्लाह की राह में जब खर्च किया जाता है, तो इसकी ये मिसाल इस तरह से दी है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं, और यानी कि वो माल बढ़ता चला जाता है। वो जैसे कि जो है वो उसके बारे में ये है कि जैसे किसी जगह पे सदक़ात में जैसे रकम खर्च की गई, या मुसलमानों की किसी भलाई और बेहतरी के लिए, या किसी भी जगह के ऊपर, तो वो ये है कि वो एक ही जगह पे जितना उसने दिया होगा, एक इंसान ने, चाहे उसने कहें कि आज के ज़माने में अगर 10,000 भी लगाया है, तो वो आखिरत के ज़माने तक में जब वो पहुँचेगा, तो वो उतना नहीं होगा, वो कहीं गुना बढ़ चुका हुआ होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ वो नेकी के कामों में वो इस्तेमाल होता रहा, लोग उससे फ़वाइद उठाते रहे, तो वो जो है वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, कि वो पैसे उसके ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि इसी तरीके से कोई दरख्त लगाता है, उससे जितनी देर तक कोई मखलूक उसका फ़ायदा उठाती है और आगे नेक काम करती है, तो वो भी उसका भी सिला उस इंसान को जो है वो मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालों से बात हमें सिर्फ़ ये समझनी है कि जब नेकियों के ऊपर कोई चीज़ लगाई जाती है, अपना वक़्त या माल, तो बात ये है कि उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं, और बढ़ा-चढ़ा के देंगे, यानी एक का 7 गुना, जैसे कि, और फिर उसके बाद हर बाली में 100 दाने हों, यानी कि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन, वो उसको इतना मल्टीप्लाई होती चली जाती है कि वो इंसान की सोच है कि वो कितना ज़्यादा बढ़ के उसको मिलेगा। तो जो लोग अपना और अल्लाह ताला की शादी और इल्म वाले हैं, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं, ना ईज़ा देते हैं, ना किसी को तकलीफ़ नहीं देते, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कोई कुछ खौफ होगा, ना वो उदास होंगे। नरम बात कहना, माफ़ कर देना, इस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो, यानी तंग किया जाए किसी को, और अल्लाह बेनियाज़ और बुर्दबार है। ऐ ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर के, यानी तकलीफ़ देकर बर्बाद ना करो। खैरात ऐसे नहीं करनी चाहिए कि किसी की इंसल्ट करके उसको दी जा रही हो, या ये कि उसके बाद उसकी बातें 10 लोगों को खुद बयान करे, या मीडिया में उसका इज़हार कर दे। तो इस तरह तो किसी की इज़्ज़त-ए-नफ़्स, यानी उसकी इंसल्ट ही एक तरह से की जा रही है, और लेने
वाला किस कदर अपनी जगह पे शर्मिंदा हो, और ऐसी नेकी जो है वो अल्लाह ताला इसको ना इस तरह से ना करने का कहे, इस तरह से नेकी ज़ाया हो जाती है। तो जो लोग जो शख्स अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह पे ईमान रखे, ना क़यामत पर, ना इसकी उसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर इस पर ज़ोरदार नींव बरसे, वो इसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। यानी कि वो कोई नरम और ज़रख़ेज़ ज़मीन की मिसाल नहीं, क्योंकि पहले एक पौधे से उसकी मिसाल दी गई, फिर अब ये जो है एक ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन और पथरीली ज़मीन से मिसाल दी गई। जो पत्थर वाली ज़मीन होती है तो वो बिल्कुल ऐसे पत्थर के ऊपर अगर ज़रा-सी मिट्टी हो तो वहाँ तो कोई पौधा या कोई नेकी जो-सी है वो ठहरेगी नहीं, बल्कि वो ज़ाया हो जाएगी। यानी कि अगर बीज डाला जाए ऐसी मिट्टी के ऊपर जिसके नीचे के पत्थर मौजूद हो, तो वहाँ पे क्या पौधा निकलेगा? वो तो ठहर नहीं सकेगा। पौधे को तो निकलने के लिए कुछ नरम ज़मीन चाहिए जहाँ पे वो ठहर सके, उसकी जड़ें मज़बूत हों, और उसके लिए भी मिट्टी चाहिए कि जिसके अंदर वो अपनी जड़ उसकी निकलेगी। तो मिसाल की बात जिससे यही समझ आता है कि ऐसे अमाल जो कि दिखावे के लिए किए जाते हैं, वो बिल्कुल भी उसका फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं होता। और इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती, और अल्लाह काफ़िर कौमों को सीधी राह नहीं दिखाता। तो चाहे दुनिया में कहीं से भी लोग अल्लाह को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, अगर वो इस तरह की नेकियां करते हैं तो ये बात उनकी नेकी का कोई फ़ायदा उनको हासिल नहीं होगा। इन लोगों की मिसाल है जो अपना माल अल्लाह की रज़ामंदी की तलब में दिल की कोशिश से यकीन के साथ खर्च करते हैं, इस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश इस पर बरसे और अपना फल दुगना लाए। ये नहीं कि जब किसी ने बाग लगाया हो, खेती लगाई हो, तो उसको जो पानी देने का जो एक इशू होता है ना, कि उसको पानी मिले और उसके पौधे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसके अंदर उसकी फसल हो, तो ये कि अल्लाह ताला ये जो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे बाग हो और वहाँ पे अच्छे तरीके से उसको पानी भी मिल जाए। और ख़ास तौर पे ये जब आयत अरब लोग उस तरह से सुन रहे होंगे, उनके इलाके में तो चूँकि खुश्क और मौसम खुश्क हो और उस लिहाज से पानी की ही कमी उस तरह से होती थी और खेती-बाड़ी के लिए बहुत मशक्कत की जाती थी। तो क्योंकि हर तरह की ज़मीन होती है, कोई ज़रख़ेज़ होती है, कहीं कहीं पे हालात ऐसे होते हैं, आबो-हवा ऐसी होती है कि पानी अच्छा नहीं मिलता। तो यहाँ पे चूँकि वो इस चीज़ के साथ ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस थे, तो वो इस चीज़ों को उनको समझाने के लिए खेती, बारिश और इस तरह की चीज़ें जो है वो उनकी, ताकि उनको ये बात समझ आ सके। तो फिर ये कि जब उसके ऊपर ज़ोरदार बारिश उस पे बरसी तो अपना फल दुगना लाए, और अगर इस पर बारिश ना भी बरसे तो फुआर ही काफ़ी है। यानी कि इतनी अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि उसको कम भी पानी मिल जाए तब भी उसका फल आ रहा है। तो अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। यानी कि इंसान जब नियति के साथ कोई काम करे तो उसका फ़ायदा उसको उसी हिसाब से मिलेगा, जिस लेवल की वो नेकी करे उसके हिसाब से होगा, और इसको अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेंगे। क्या तुम में से कोई ये भी चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसके नीचे नहरी-वहरी हो, इस पे हर किस्म के फल मौजूद हो, उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो और उसके नन्हे-नन्हे बच्चे हों, और अचानक बाग को बगुला आ जाए, यानी हवा ऐसी तेज़ चले कि वो उसको तबाह कर दे, जिसमें आग भी हो, और बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बड़ा सब कुछ अच्छा है, और रियाकारी को बयान किया जा रहा है पीछे कि जो लोग नियतें कुछ होती हैं, दिखावे के लिए वो एक काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसमें ये बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर इस तरह से कोई नेकी की जाएगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल ज़ाया चली जाएगी वो। और ये बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि इंसान एक वक़्त लगा कर के कोई नेक काम करता है, तो वो तमाम वक़्त जो उसने गलत नियत के लिए लगाया, तो उसका अगर वो अच्छी नियत के लिए लगाता, तो वो अमल महफ़ूज़ हो जाता, उसका सवाब भी महफ़ूज़ हो जाता। तो वो बुढ़ापे से और चीज़ों के ज़ाया हो जाने से हमें ये बात समझ आती है। ए ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, और इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करना, यानी इरादा ना करना, जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आँखें बंद करके ले लो। यानी जो सदक़ात होते हैं, किसी को देने वाला तोहफ़ा हो या अल्लाह की राह में खर्च किया जा रहा हो, तो अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, गंदी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ख़राब हालत वाली नहीं देनी चाहिए कि अगर कोई हमें दे तो जो है वो हमें बुरा लगे। तो इसलिए जिसको भी इस तरह से कह रहे हैं, चूँकि ये एक टेस्ट है, लिहाज़ा अल्लाह ताला ने इसमें हिदायत भी दी हैं साथ में, और जान लो कि अल्लाह बेपरवाह और खूबियों वाला है। यानी कि अगर कोई बार-बार ऐसा करेगा भी तो अल्लाह ताला को तो ये चीज़ नहीं चाहिए, वो तो बेनियाज़ है। ये तो अल्लाह ताला हमारे लिए एक आसानी करेंगे, हम नेकी का काम करें और हमें इससे फ़ायदा मिले। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता और बेहयाई का हुक्म दे, यानी शैतान ये जो अल्लाह ताला तरगीब दे रहे हैं, बकअप कर रहे हैं कि इंसान अपने माल को खर्च करे, नेकी हासिल करे, तो दूसरी जानिब पे शैतान जो है वो ये चीज़ का हुक्म देता है और ये बातें सिखाता है कि इस तरह खर्च करने से तो पैसे कम हो जाएँगे, तो इंसान कहीं फ़कीर ही ना हो जाए, उसके पास तो कुछ नहीं रहेगा, और वो बेहयाई का हुक्म देते हैं, बुराई के रास्तों की तरफ लेकर के जाता है। अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फ़ज़ल का वादा करते हैं। या अल्लाह वुसअत वाले और इल्म वाले हैं। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देते हैं, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया है। वैसे ही सूरह अल-फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो है, सिरात मुस्तकीम ही माँगी जा रही है, और सिरात मुस्तकीम का एक सिलसिला जो-सा है ख़ास तौर पे, और बड़ा ज़रिया कलाम इलाही है। कलाम इलाही में अल्लाह ताला ने बातें खोल-खोल के बयान कर दी हैं, हिकमत और दानाई की, कि किस तरह से कामयाब होना है, इनाम वाले लोग कौन होंगे, और कौन-सी ऐसी बातें हैं डोंट्स कि जो नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह करने से जो कौमें थी या जो ग्रोह थे या लोग थे, जैसे बनी इसराइल का ज़िक्र आता है, तो वो नाकाम हुए। तो ये नसीहत है, ये हिकमत है। तो वो बहुत सारी भलाई, और नसीहत सिर्फ़ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ खर्च करो, ये नहीं खैरात हो, जो कुछ नज़र माँग लो, यानी अगर किसी ने कोई मन्नत माँगी हुई है कि वो इसने इस तरह से लोगों को खिलाना-पिलाना है या कोई नेक अमल करना है, तो इसे अल्लाह बखूबी जानता है, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। अगर तुम सदका खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा, अगर तुम उसे पोशीदा-पोशीदा मस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इन्हें अल्लाह ताला को छुपा हुआ सदका पसंद है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। किनकी बात हो रही है? मुशरिकीन मक्का हों या अहले किताब हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 2 तरह के बड़े ग्रुप पाए जाते थे। बल्कि हिदायत अल्लाह देते हैं जिसे चाहते हैं, और जो भी आप भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे उसका फ़ायदा पाओगे। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ वाज़िया कर दिया। एक तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी की हालत में रहते थे कि किस तरह से इनके दिल जो है वो नरम हो और ये दीन की तरफ आए, और अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि ये
कुछ जो मतलब शख्सियात होती हैं, कुछ लोग उन्होंने उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। और बात ये है कि ये हदायत जौन-सी होती है, इंसान चाह के भी किसी को नहीं दे सकते, इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? जो शख्सियत उन्होंने अपने कुफ़्र के ऊपर जमे रहने की बनाई हुई है, उनकी नीयतों की वजह से है, बात तो उन तक पहुँच रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से यानी कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो यही है, तभी हमें हिदायत अल्लाह से माँगनी है। और हम जिसके लिए खैर ख्वाही समझते हैं कि हम कर सकते हैं, उनके लिए भी माँगना चाहिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए माँगना चाहिए, अपने घराने वालों के लिए माँगना चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी की तलब के लिए खर्च करना चाहिए, यानी नीयत ये होनी चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा-पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। यानी अल्लाह के यहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती कि जिसने बहुत अच्छा नेकी का अमल किया उसको सिला ना मिले, ये बात नहीं होगी। सदाक़ात के मुस्तहिक़ सिर्फ़ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए हैं, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। जब इंसान की माली हालत खुदा न ख़ास्ता इतना ख़राब हो जाती है, तो उसके पास चूँकि इतने वसाइल नहीं होते कि वो अल्लाह की राह में निकले या किसी और जगह पे जाए या कोई काम कर सके, तो ये इस तरह से बयान किया जा रहा है। तो नादान लोगों की बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। तो वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की कि जो अल्लाह वाले कुछ लोग होते हैं या कुछ इंसानों की इस तरह से खुददारी वाली आदत होती है कि वो वाक़तन ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन वो इसका इज़हार नहीं करते। तो अगर वो इस तरह की वाला इज़हार नहीं करते, माँग नहीं रहे, तो कुछ और तरीके होते हैं पता चलाने के। और इस तरह से इंसान को तसल्ली हो जाती है कि वाक़तन इनको बेशदीद ज़रूरत है और उनकी मदद की जानी चाहिए। तो अल्लाह ताला ये एक इस मतलब एक तरह से समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों को ढूँढना चाहिए कि जो अल्लाह ताला को मानने वाले और खुददार लोग हो। तो जो जिनके अंदर एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि जो तर्जुमे में देखते हैं, आप उनके चेहरे देख कर के क़ियाफ़े से इन्हें पहचान लेंगे। यानी चेहरे से पता चल जाएगा कि उनकी क्या हालत है। ये इंसानों को ये इल्म भी थोड़ा-सा, ये हर इंसान के अंदर थोड़ा-थोड़ा सा ये जो है ना हिस्स पाई जाती है। और हत्ता कि जानवरों के अंदर भी अगर कोई जैसे किसी ने पेट पाला हो या पालतू जानवर हो, तो इंसान अगर उदास हो या किसी भी तकलीफ़ की हालत में हो, तो वो जानवर अपनी हमदर्दी का इज़हार करते हैं। तो इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने क्यों नहीं डाली होगी? लिहाज़ा इंसान को अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को पता चला देना चाहिए। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, यानी कि वो आधी माँगने वाले नहीं हैं। तो तुम जो कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करो, तो अल्लाह इसको जानने वाला। देखिए, बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने बयान पहले तो किया कि खर्च करना चाहिए, और जो खर्च करने में है, इस तरह की नियत नहीं हो, इस तरह की रखें, एक नियत बुरी है, एक नियत अच्छी वाली है, अल्लाह के लिए है। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि अब जो देने वाले, जो ज़रूरतमंद कुछ लोग हैं, जिनको देने वालों ने देना है, तो वो भी इस कैटेगरी के लोगों को भी पहचान करके रखें। अल्लाह ताला चूँकि चाह रहे हैं कि आपस में एक बाहमी हमदर्दी वाला माशरा क्रिएट हो, और जो कि दिल से नीयतें साफ़ लेकर के चले, किसी की बुराई और दिखावे के लिए ना हो। तो ये वो चीज़ है कि जो इंसान एक दूसरे का ख्याल रखें, तो माशरे में इतनी नाइंसाफ़ी ना हो। तो बात ये है कि अभी भी चूँकि यही टॉपिक चल रहा है, तो इसके सिलसिले में मज़ीद इसके आगे वही आयत है कि तुम जो कुछ माल खर्च करोगे तो अल्लाह को उसको जानने वाला है। जो लोग अपने मालों को रातों दिन में छुपे खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब के पास अजर है, और उन्हें ना खौफ होगा और ना गमगीनी। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की ढाल बंधाई है कि जिनको शैतान अगर ये कह रहा हो, लोग कह रहे हैं कि आप तो अपना माल इस तरह खर्च करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी और जगह इन्वेस्ट करें, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, इतना मंथली और इतना ईयरली मिलेगा। तो अल्लाह ताला यहाँ ये बात बयान कर रहे हैं कि जो अल्लाह के पास से अजर मिलना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनियावी काम के ज़रिए, कि बनिस्बत सूदख़ोर लोग ना खड़े होंगे, मगर इस तरह जिस तरह से खड़ा होता है जिसे शैतान ने छू करके खबती कर दिया गया हो। तो ये इसलिए कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है। हालाँकि इन अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। जो शख़्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत को सुनकर रुक गया, उसके लिए वो जो है जो गुज़रा, और उसका मामला अल्लाह की तरफ है। यानी जिसने सूद लेना अल्लाह ताला की नसीहत सुन करके रोक दिया है, तो फिर उसका जो पहले वाला अमल था अल्लाह उसको माफ़ कर सकते हैं। तो जिसने फिर भी किया, यानी जिसने अल्लाह के हुक्म पे बिल्कुल अमल नहीं किया और अपनी मनमर्ज़ी की कि और वो जहन्नमी है, ऐसे लोग हमेशा इसी में रहेंगे। क्योंकि ये जो सूद के बारे में आयत है, वो जो-सा है वो अल्लाह ताला जिस तरह से बयान कर रहे हैं कि सदक़ात और इस तरह से लोगों को माल देना अल्लाह ताला को ये पसंद है। और दूसरी जानिब शैतान जो है वो रास्ता अगर सूद का दिखाता है कि सूद से माल जो है, सूद क्या होता है पहले, कि जब आप किसी को कोई कर्ज़ दें या रकम दें या कोई चीज़ दें, तो जितनी मलकियत की वो है या जितने पैसे दिए गए हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि किसी इंसान को अगर कोई 1 लाख देता है या 1000 देता है, 1000 देता है, और उसको कहते हैं कि वापसी के वक़्त में मुद्दत के साथ या 30 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अगर वापस करना है, तो इस कंडीशन के साथ दे कि वो 1 लाख वापस नहीं करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा देगा। अब वो जो पैसे, जो कंडीशन उस वक़्त लगाई गई थी, वो चीज़ सूद में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि वो अगर वो वक़्त गुज़र भी जाता है, तो वो फिर उसके ऊपर वो जो उसको अगर 1 लाख पे 10,000 ज़ायद देने थे या 5,000 ज़ायद देने थे या 1,000 अगर उसने दिया, तो उसके ऊपर उसको ₹100 भी अगर ज़ायद देना है वापसी पे, जो अगर कर्ज़ लिया है या कोई सूद के ऊपर जो कर्ज़ दिया जाता है या कोई मामलात तय होते हैं, तो वो जो उसको ज़ायद रकम देनी है, बाज़ दफ़ा वो इंसान नहीं अदा कर पाता, तो वो उसके ऊपर भी वो बढ़ाते चले जाते हैं, सूद के ऊपर सूद होता है। तो इस तरह से वो पैसे दूसरों की जेब से निकलवाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अल्लाह ताला उसको हराम करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे पैसा एक इंसान के पास जमा होता है। कुछ लोगों के पास अगर वो ऐसे करने लग जाएँ ऐसे कारोबार, तो उनके पास जमा, पैसे से पैसे का कारोबार इस तरह नहीं करते। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इस चीज़ को रोका है, क्योंकि इससे भी पूरे माशरे में जो मनी की सर्कुलेशन होती है, वो रुक जाती है। क्योंकि तजारत करना, कोई और ऐसे काम करना जिसमें दूसरे लोगों को जॉब्स मिलें, और फिर इसके अलावा जो है उनको तनख्वाहें अदा की जाए, और ऐसी जगह पे माल लगाया जाए जहाँ पे फिक्स प्रॉफिट, यानी जिसको आज की ज़बान में समझेंगे हम, वो चीज़ कंडीशन ना हो। जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो सूद के टोटल अगेंस्ट बात है। वो तिजारत, वो चीज़ बिल्कुल अगेंस्ट है। लेकिन सूद क्या होता है कि जिसमें हर सूरत हाल में जो पैसे वाले जो उसको पैसे को लगा रहा है, उसी का फ़ायदा है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट की बेस के ऊपर होता है, बल्कि उसके अंदर कोई लॉस है ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मना किया है, और इसको ऐसे मिसाल दी है कि जैसे कोई कैफ़ियत कब्र से उनके उठने की ये बयान की है कि जैसे उनको किसी ने जिन ने उनको छू करके, यानी कि जैसे कोई बाउला सा इंसान होता है, वो वैसे हैं। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। यानी पहले आयत में तो अल्लाह ताला ने सदक़े
सदके और देने वाली बातों के ऊपर जो है मतलब कहा है कि इस तरह करना चाहिए और तरगीब दिलाई है। और जो सूद है अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा है कि इसको मना किया है। अल्लाह किसी नाशुक्रे और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कोई खौफ होगा, ना उदासी और गम। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, जो सूद बाकी रह गया वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमानदार हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए किसी भी बात, किसी भी गुनाह के ऊपर ये चीज़ नहीं की गई कि वो अल्लाह और रसूल से जंग है, लेकिन सूद के बारे में कहा गया है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ऐसा करने से कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं होगा अगर हम बहसीत इंसान इसको सोचें। लेकिन अल्लाह जो एक इकोसिस्टम वाली एक सोसाइटी को बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो उस सारे सिस्टम के अंदर सबकी भलाई है, सबकी खैर ख्वाही है, हत्ता कि जो लोग कमा भी नहीं रहे, यानी कि जो सदके के मुस्तहिक हैं और वो जिनको जो ज़रूरतमंद है, अल्लाह ताला इस तरह से बात कर रहे हैं कि उनको हमदर्दी के साथ देना चाहिए। सदका यही तो है, और ये इस तरह से समझा जाना चाहिए कि जो उनको पैसा दिया जाएगा उनकी मदद के लिए, जो सदक़ात दिए जाएँगे उसका सिला अल्लाह ताला देंगे, उस इन्वेस्टमेंट को अल्लाह ताला जो है वो उसका बदला देंगे। लेकिन जो सूद है वो तो दुनिया में ऐसा मामला है कि जो लोगों की जेबों में जो थोड़े से पैसे हैं, जो ऑलरेडी ये कर्ज़ ले रहा है, उसकी माली कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उससे भी वो चीज़ निकलवाई जाए जो बाकी उसके पास, अगर वो उसने कोई काम किया हो, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने नापसंद की और इसी वजह से इसको अल्लाह और रसूल से जंग भी कहा है। इसके बावजूद अगर किसी इंसान को ये ना भी समझ आए कि अल्लाह रसूल से जंग क्यों है, तो इस बात को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार जो है, आप देखिए हस्ती की, उस हस्ती की ताकत और उनकी अहमियत और उनका इख्तियार क्या है। तो इस बात को भी समझे। उनकी उनकी जो समझ है, अगर इंसान को उस तक समझ नहीं आ सकती, तो बात ये है कि जब माशरे में नाइंसाफ़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा अमीर अमीर हो और गरीब गरीब हो, तो उस माशरे में बहुत ज़्यादा जराइम का रवाज भी पा जाता है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि माली खुशहाली होना, हर इंसान चाहता है कि उसको वो हाली मतलब उसको वो मिली हुई हो, तो उसके पास लग्ज़री हो, नेमतें हों, तो अगर वो उससे उसके ऐसे हालात नहीं है, तो बिलाशुबा फिर वो गलत रास्ते की तरफ लोग ज़्यादा चले जाते हैं और बेवकूफ़ियाँ इस लिहाज से करते हैं, और माशरे में बहुत सारे जराइम जन्म लेते हैं। तो लिहाजा अच्छे तरीके से वक़्त के ऊपर मदद कर देने से एक फ़ज़ा कायम होती है, और किसी को इस तरह से मदद कर देना कि वो खुद अपने हुनर से या वो अपना जो है वो कमाना शुरू कर दे, तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। और ये सदक़ात का सिस्टम ही इसीलिए बनाया गया है। अगर कोई बस अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तो तुम्हारा है। ये नहीं कि किसी ने सूद नहीं लेने की बात अल्लाह ताला करे, अलबत्ता जब किसी ने अगर कर्ज़ दिया हो, जो जो कोई चीज़ लगाई हो, जो असल रकम है उसको छोड़ने को नहीं कह रहे। तो सूद को वो ख़त्म करे, ना तुम ज़ुल्म करो, ना तुम पर ज़ुल्म किया जाएगा। अगर कोई तंगी वाला है तो उसको आसानी की मोहलत दे देनी चाहिए। किसी का हाथ अगर तंग है और वो नहीं दे पा रहे, सूद उसी तरह कंडीशन पे होता है ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको उसके ऊपर सूद नहीं लगाते, उसको टाइम दे देते हैं और सदका कर लो, यानी कि अगर उसको माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। अगर तुम्हें इल्म हो, उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे, और हर उस शख्स को उसके अमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। इन पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। और ए ईमान वालों, जब तुम आपस में एक-दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज़ का मामला करो, यानी एक टाइम पीरियड में जो किसी को लोन दिया जाता है, तो उसके बारे में जो है तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वालों को चाहिए कि तुम्हारे आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, जैसे अल्लाह ने इसे सिखाया है। अब ये जो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, लिखने वाले को भी बिल्कुल ठीक-ठीक रहना चाहिए। हो सकता है किसी को इतनी समझ ना हो, जो ट्रांज़ैक्शंस उसमें लिखी जा रही हैं, जो बात उसमें लिखी जा रही है, किसी को धोखा ना दिया जाए। तो लिखने वाले को भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अदल की बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे की है। और जो है कि जब लिखने का कहा जाए, तो फिर जो है उनमें से कोई एक फरीक जो है ये ना कहे कि नहीं, नहीं तो हमारी उनकी बात है, ये हमारे आपस, इस तरह नहीं। अल्लाह ताला चाह रहे हैं हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हो। क्यों? इसलिए बहुत सारे मामलात में जब शैतान जो होता है किसी एक फरीक के दिल में, एक जो पार्टी होती है उसके दिल में ऐसे ख़यालात और वसवसे डाल देता है, तो इससे मामलात बाद में हमेशा ख़राब हो जाते हैं। लोग एक-दूसरे के ऊपर ज़ुल्म करते हैं और उसका हक़ खा जाते हैं। तो बात ये है कि इसलिए अल्लाह ताला ने पसंद किया है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, जैसे अल्लाह ने सिखाया है, बस इसे भी लिख देना चाहिए, और जिस किसी में हक़ हो वो लिखवाए, और फिर अल्लाह से डरे जो उसका रब है, हक़ में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस किसी में है अगर नादान या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, माल होता है उनके पास, लेकिन उनको नादान है, यानी कि उनको वो जो मुआहिदा है या ये जो जिस जगह पे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कुछ उसकी समझ नहीं है, या हो सकता है कि कोई बच्चे हों या जिनके वालिदैन उनके लिए मतलब जायदाद या चीज़ें छोड़ गए हों, या वो उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको लिखवा सके, सोच समझ नहीं है। ख़वातीन भी हो सकती हैं, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनको इतनी समझ ना हो, तो उनको क्या करना है, बेवकूफ़ नहीं बनाना, उनके साथ कोई धोखा नहीं करना। तो जो लिखवाने की ताकत ना रखता हो, तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दे, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लिया करो। अगर वो 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, जिन्हें तुम गवाह में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक दूसरी याद दिला देगी। यानी जो 2 औरतें गवाह होंगी वो एक-दूसरे को अगर कोई चीज़ भूल जाए तो वो याद भी करा देंगी, और गवाहों को चाहिए कि जब वो बुलाए जाएँ तो इनकार ना करें, यानी अगर गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। तो कर्ज़ को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, ख़्वाह छोटा हो या किसी भी लेवल का, तो उसे लिखने में काहिली ना करो। अल्लाह के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ़ वाली है, अल्लाह गवाही भी दुरुस्त रखने वाली है, और बहुत करीब है कि इससे तुम शक में ना पड़ो। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन-देन कर रहे हो, तो पर इस के ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो-फ़रोख्त के वक़्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो। याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुँचाया जाए, ना गवाह को। अगर तुम ये करो तो तुम्हारे लिए खुली नाफ़रमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। आज इस दौर में अल्लाह ताला की ये तमाम बातों से हम एग्री करते हैं कि हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है। किसी का कोई भी हक़ हो, कोई भी काम कोई कर रहा हो, और वो खुद भी अगर मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई फ़ौत हो जाए या उसके बाद दूसरों को कोई इश्यू होता हो। लोगों को ज़िंदगी में भी बहुत सारे अपने अपने ही मामलात के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो लिखा लिखा गया होता है मुआहिदा, या उसमें फ़ॉल्ट होता है, या ये कि लिखा ही नहीं जाता, तो उसके बाद जो उनके हक़
हक की चीज़ होती है वो उसके दावा नहीं कर सकते, वो उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने ये डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला या इसके ऊपर ज़ोर देने का जो कहा गया है वो इसी ह्यूमन साइकी की वजह से कहा गया और टेंडेंसीज़ होती हैं इंसानों के अंदर और शैतान के काबू में वो आ जाते हैं। तो लिहाज़ा लिख लेना बहुत बेहतर है। पीछे गवाही का ज़िक्र हुआ है जिसमें कि एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही का ज़िक्र। तो बात है कि अल्लाह ताला किसी भी तरीके से बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी। बात ये है कि ये जो ख़ास तौर पे सख्त मामलात होते हैं जायदाद का, कुछ लेन-देन का, तो ज़रा चूँकि इसमें एक ज़िम्मेदारी है होती है गवाही देना। अल्लाह ताला ने ख़वातीन के ऊपर कोई इस तरह की हार्ड ज़िम्मेदारी चाहे इस तरह से हो, वो नहीं डालने की कोशिश की। तो एक की जगह 2 ख़वातीन को, क्योंकि अगर घबराए औरत वहाँ पे अकेली होके वो बात ना कर सके या ये कि उसको लगे कि उसके साथ कोई ज़्यादती हो सकती है, कोई उस गवाही देने के ऊपर उसके ऊपर जो है कोई अताब नाज़िल हो सकता है। तो बात ये है कि 1 से 2 जो वो ख़वातीन होंगी, क्योंकि जो एक तरह से उनकी कहना चाहिए इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे कि वो अपनी किसी दोस्त के साथ या दूसरी गवाह के साथ जो अगर वहाँ खड़ी हैं तो वो कंफर्टेबल फ़ील करें ताकि उनको वो झिझकें नहीं इस चीज़ को। वैसे भी बहुत सारे मामलात में जो विटनेस होती है वो यही होता है कि वो हाँ जी, हमें ये चीज़ पता है, वो उस चीज़ का वो बता देते हैं, तो मामला जल्द हल हो जाता है। जहाँ विटनेस सही मामलों में नहीं होती और जो चीज़ उस चीज़ का अकेला कोई इस तरह से करते हैं मामला, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी एक फ़रीक के साथ ज़्यादती हो जाए। जो पावरफुल होगा वो जो कमज़ोर फ़रीक होता है और उसके ऊपर कोई ज़्यादती की जा सकती है, यानी कि उनका हक़ लिया जा सकता है, उनका माल ज़ाया किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हैं। ये चूँकि अल्लाह ताला नहीं चाह रहे कि ख़वातीन के ऊपर जो है वो मतलब कोई इतनी बड़ा बोझ उस तरह से डाला जाए और हर तरह की मतलब एक ओवरऑल करके बात की जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि इस जेंडर में भी जो कोई अगर है मतलब कोई ख़ातून है तो हर ख़ातून जो है वो स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाली नहीं होगी। हो सकता है उनके बाज़ जगहों पे ख़वातीन स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाली हो और बाज़ जगहों के ऊपर जो है अगर मर्द हज़रात में देखा जाए वो इतने नर्व्स उनके स्ट्रॉन्ग ना हो। लेकिन फिर भी अल्लाह का जब कोई असूल कायम होता है वो ओवरऑल होता है। तमाम एक जैसे इंसान की बात की जा रही है तो तमाम इंसानियत को देख के बात है। लेकिन जब किसी कंडीशन की बात की जाती है तो उसमें कुछ इंसानों के रवैये और चीज़ें उस तरह से डिस्कस की। लेकिन ओवरऑल इंसान का जो असेस किया अल्लाह ताला ने तो इस मामले में भी हमें यही नज़र आता है कि अल्लाह ताला डॉक्यूमेंटेशन के लिए कह रहे हैं क्योंकि ओवरऑल तमाम इंसान जो हैं उनमें ये टेंडेंसीज़ पाई जाती हैं। तो जब रूल्स बनाए जाते हैं तो वो मेजॉरिटी को देख के बनाए जाते हैं, वो किसी इंडिविजुअल को देख के नहीं बनाए जाते। तो लिहाज़ा अगर कोई इतना इंडिविजुअल पावरफुल हो ख़वातीन में से भी जैसे देखिए सारी ख़वातीन तो दुनिया की तो सदर नहीं बन जाती हैं और वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन जाती हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने जिनको इतनी सलाहियत दी होती है और उनके नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसी ज़िम्मेदारियों को वो उठाया है उन्होंने किसी जगह के ऊपर जो है सरबराह का अगर उनका कहना चाहिए रोल उन्होंने अदा किया किसी अदारे में भी और ज़िम्मेदारी जैसे घरों में भी उठाई जाती है, तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत अता की है, तो वो लोग इसी तरीके से आगे आते हैं और वो नुमायाँ होते हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो एक लॉ कायम होता है, बनाया जाता है, उसमें किसी की भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही। तो इसके अलावा चीज़ में जो अभी भी जो एक टॉपिक चल रहा है कि अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना हो तो रहन कब्ज़े में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक-दूसरे से मुतमईन हो, जिसे अमानत दी गई है, वो उसे अदा कर दो। अल्लाह से डरता रहे तो उसका रब है और गवाही को ना छुपाओ और जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है और जो कुछ तुम करते हो, उसे अल्लाह खूब जानता है। तो अल्लाह ताला जो बातें बयान कर रहे हैं, बार-बार इसी चीज़ के ऊपर ताकीद कर रहे हैं कि इस चीज़ को लिख लेना चाहिए और कोई चीज़ सफ़र में है, इंसान का अगर मालो-दौलत उसके साथ नहीं है और उसको अगर कागज़ और पेंसिल तक नहीं मिल रही लिखने के लिए, तो बात ये है कि कोई चीज़ देख कर के भी मतलब बोरो कर ली जाए और अगर वैसे किसी से मिल सकती है तो लेके फिर भी उसको लिखा जाए। तो अल्लाह ताला इतना इसके ऊपर जो है एम्फसाइज़ कर रहे हैं। तो और गवाही को ना छुपाओ हाँ, अगर आपस में एक-दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो इसे अदा कर दे और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। बिल्कुल वो उसी तरह से बात है कि तमाम इंसान एक तरह से नहीं होते, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इतबार के अगर काबिल हैं, तो ठीक है, अगर सफ़र में चूँकि अगर इंसान को कोई चीज़ नहीं इस तरह से मिल रही और ना ही कोई मौका मिल रहा कि उस चीज़ को लिखा जाए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर उस सूरत हाल में अगर इंसान का दिल ये राज़ी है कि ये जिसके ऊपर वो एतबार कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को जो है धोखा वहाँ पे नहीं होगा, तो वो ठीक है। अमानत जिसको दी गई वो मुतमईन है, तो फिर ठीक है, वो इसे जिसको दी गई है, तो फिर उसका काम है कि वो अदा करे और अल्लाह से डरे। तो जो उसका रब है, अगर गवाही को ना छुपाओ और गवाही को ना छुपाओ, जो उसे छुपा ले तो वो गुनहगार दिल वाला है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की मलकियत है और जो तुम्हारे दिलों में जो कुछ उसे तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह इसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहेगा बख्शे और जिसे चाहे सज़ा देगा। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। रसूल ईमान लाए इस चीज़ पर जो अल्लाह उसकी जो उनकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी और मोमिन भी ईमान लाए। यानी पहले रसूल ईमान लेकर के आए, उन्होंने फिर उस पैगाम को पहुँचाया और फिर जो है मोमिन ईमान लाए। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाए और उसके रसूलों में से किसी पे भी हम तफरीक नहीं करते। सूरह अल-बकरा का आखिरी रुकू जो है वो इसकी आयत की तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं, तो ये ईमानियात का एक हिस्सा है और ये लाज़िम और मलज़ूम हिस्सा है। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और अताअत की, हम आपकी बख्शिश तलब करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें आपकी तरफ ही लौटना है। तो जो ईमान वाले गिरोह होते हैं, जो अल्लाह की बात, उनकी नसीहत उनके पास आती है, तो वो उसको मानते हैं और अताअत करते हैं, अमल करके दिखाते हैं। और ये अमल क्यों करके दिखा रहे हैं? ताकि अल्लाह ताला उनको बख्शिश जो वो तलब कर रहे हैं, वो उनको अता कर सके, एक सीधा राह अता कर सके। तो और अल्लाह किसी की और ये देखिए उनकी अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की क्या है कि हमने रब की तरफ लौटना है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। तो जो किसी के ऊपर आज़माइश आती है, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उस आज़माइश का लेवल किस वजह से हाई है या दूसरे लोगों की निस्बत कोई इंसान पे ज़्यादा आज़माइशें आ रही होती हैं, तो अल्लाह कह रहे हैं कि उसकी ताकत कौन-सी है, उसके हिसाब से उसके ऊपर तकलीफ आ रही है। तो हर वो जो नेकी करे और वो उसके लिए जो बुराई करे वो उस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो
तो हमें ना पकड़ना, यानी हमारे ऊपर जो है अज़ाब ना लाना, ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डालना जो हमसे पहले लोगों पर डाला था, यानी कि आप हमें वो वाली आज़माइश और तकलीफ़ ना दीजिएगा। तो ए हमारे रब अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना, ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डालना जो हमसे पहले लोगों पर डाला था, ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हमें ताकत ना हो। देखिए बार-बार किसी बड़ी आज़माइश से बचने के लिए इसका कहा जा रहा है, और जब हत्ता कि अगर वो कोई चीज़ आ भी चुकी हो, वाक़या हो भी चुकी हो, तब भी इन आयात को पढ़ के इंसान दुआ कर सकता है। और ख़ास तौर पे ये सूरह अल-बकरा का आखिरी रुकू जो है, वो रुक़या के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, दम जिससे किया जाता है। ख़ास तौर पे नज़र में अगर किसी को लगे कि उसके ऊपर कोई जादू का असरात है, सहर है उसके ऊपर, या ऐसे अनयूजुअल से मामलात हैं, और तो उन उस वक़्त भी, और वैसे भी सुबह शाम के अज़कार में ये शामिल है। तो ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हम में ताकत नहीं हो, और हमसे दरगुज़र फ़रमाइए, हमें बख्श दीजिए, हम पर रहम कीजिए, और आप ही हमारे मालिक हैं, हमें काफ़िरों की कौम पर गलबा अता फ़रमाएँ। और जब ये आयत पढ़ी जाती है, चूँकि इसके अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला से माँगा जा रहा है, तो इसके साथ जो है वो आमीन भी जो है वो ज़रूरी होती है। और सूरह अल बकरा की ये जो आयत है, इनकी बड़ी हदीस में फ़ज़ीलत आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को पढ़ लेता है, तो ये उसको काफ़ी हो जाती है। सहीह अल-बुखारी की हदीस नंबर 4008 है, और इसकी अमल की बदौलत अल्लाह ताला इसकी हिफ़ाज़त फ़रमा देता है, और इस बाज़ के नज़दीक इसका मतलब है रात के क़याम से काफ़ी हो जाना है। एक और हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात में जो 3 चीज़ें मिली थी, इनमें से एक सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयत भी हैं। सहीह मुस्लिम की जो है ये हदीस है 173। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रवायत में इसको एक ख़ज़ाने में से अता की गई है। उन्होंने कहा कि ये एक ख़ज़ाने से अता की गई है जो अर्श इलाही के नीचे है, और ये आयत आपके सिवा किसी और नबी को नहीं दी गई। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हा इस सूरत के ख़त्मे पर आमीन कहा करते थे। तो ये अच्छा, आप अगर हम सहाबा-ए-किराम को देखिए, कौन से सहाबा-ए-किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म हासिल करते थे, तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन जलीलुल क़दर असहाबे रसूल में से हैं कि जिनको ये चीज़ नसीब हुई। तो लिहाज़ा जो ये मकाम है दुआ का, तो वो दुआ जैसे हम अम्बिया की भी पढ़ेंगे, तो हम उनको पढ़ के अपने लिए भी और तमाम लोगों के लिए आमीन कहेंगे। तो ये एक कल्चर है जो कि हम इस किताब से सीखते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर तमाम दुआएँ हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए भी जो है कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।